یسوع سچ مچ حقیقی خدا، بائبل پڑھ کے وے، یسوع مسیح سچ مچ حقیقی خدا، مسیح بائبل پڑھ کے وے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 19 آیت سے لے کر 20 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح حقیقی بیٹا ہے اور یہی حقیقی خدا ہے اور یہی کثرت کی زندگی دیتا ہے، اور اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچا لے۔ غور کیجیے اس بات پر، آپ تشریف رکھیں۔ تھپڑاں دے نال لالو لال ہو گیا، لالو لال ہو گیا، تھپڑاں دے نال لالو لال ہو گیا، لالو لال ہو گیا، میرے لیے بھی داڑھی دا برا حال ہو گیا، برا حال ہو گیا، ان کی نہ کچھ پرواہ، او دے کلا والے ہتھاں وال وے، ان کی نہ کچھ پرواہ، او دے کلا والے ہتھاں وال وے۔ یسوع سچ مچ حقیقی خدا، مسیح بائبل پڑھ کے وے، سولی اتے جان سارے جگ نے گوائی ہے، جگ نے گوائی ہے۔ دیکھو یہ خدا کا بندہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جا رہا ہے، جہان کا گناہ، صرف مسیحوں کا نہیں، ہندوؤں کا بھی، سکھوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی، دہلیوں کا بھی، سب کا گناہ۔ ہاللیلویا، ایسا ہمارا پیارا خدا ہے، ہاللیلویا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ عزیزوں، جو ہی روزے شروع ہوئے تو ایک کال دی جائے کہیں سے، اور انہوں نے کہا کہ پاسٹر جی اپنے 7 سلیبی کلمات سنانے ہیں۔ تو میں رد ہو گیا، میں نے کہا اچھا خدا اس سال یہ جو روٹین بھی ہم سن رہے ہیں نا بار بار، مجھے نئے انداز میں سکھا، نیا انداز میں۔ شکر ہو خدا کا، یہ سارے کلام ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ایسا دیکھیے، یوحنا کا مکاشفہ اور اس کا 6واں باب ہے۔ یوحنا کا مکاشفہ ریولوشن چیپٹر 6 لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ بندہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اسے ایک تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ ہاللیلویا، اور اس سے بڑے اس کے لیے دعا کی کہ خدا مجھے اس کا تعلق کیا ہو سکتا ہے۔ ایک تو پہلا کلمہ کیا ہے جی، ابھی آپ نے سنا ہے پہلا کلمہ عزیزو بتائیے، ابھی سنا ہے، اے باپ ان کو معاف کر جو کہ جانتے نہیں ہے، کہ نہیں جانتے ہیں، دعائے بانی نہیں پتا۔ دعائے بانی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصور والوں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارا قصور معاف کر دے، کنڈیشن ہم نے خود ہی لگا دیا کہ چونکہ ہم کرتے ہیں اس لیے تو بھی کر۔ جب دعائے بانی ختم ہوئی تو ایک وڈی بریکٹ سے، وڈی بریکٹ کے اندر لکھا ہے اگر تم آدمی کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا، اور اگر تم آدمی کے قصور معاف کرو گے تو تب تمہارا آسمانی باپ وہ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا۔ وڈی بریکٹ بند۔ اسپیشل نوٹ ہے، اپنی دعائے بانی کو دیکھیے، اور یہ سارے چرچوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر عبادت کے بعد ہم کیتھولک ہوں، ہم پروٹیسٹنٹ ہوں، ہم پینٹیکوسٹل ہوں، ہم آرتھوڈاکس ہوں، ہم سلیشین آرمی ہوں یا کوئی بھی آرمی ہو، لیکن اگر ہم سفید آرمی نہیں ہیں، بائبل میں سفید آرمی کا ذکر ہے، WWW وائٹ ہارس، وائٹ آرمی،
www याद रखें, ये इंटरनेट में भी है लेकिन मुकाशफों में भी है। व्हाइट हॉर्स, व्हाइट पोशाक और व्हाइट घोड़ों पर, और पहली मोर जब खुली तो उसमें से सफेद घोड़ा निकला है और उसके ऊपर एक सवार है, और वो कौन है? बर्रा। किसका टाइटल है? बर्रा। यीशु मसीह का टाइटल है। जमीन पर वो आपको एक बेटे की सूरत में नजर आते हैं। ज़बह क्यों है? बर्रा क्यों का टाइटल है। आदमजाद भी है। आदमजाद चारों अनाजील के अंदर 85 दफा लफ्ज सन ऑफ मैन भी लिखा है। आदमजाद, सन ऑफ गॉड, ज़बह किया हुआ बर्रा, मुख्तलिफ टाइटल को दिए गए हैं। और ये पहली मोर जो है, ये खुदावंद की 7 रूहें हैं, खुदावंद यीशु मसीह की 7 रूहें, जिसका जिक्र आप यशाया उसका 11वें बाब में पढ़ सकते हैं। खुदावंद की 7 आंखें हैं, 7 रूहें हैं। जब पहली मोर और रूह कुदस की खुली तो सफेद घोड़ा निकला है। क्या मैं और आप रूह कुदस से मामूल हैं? अगर ऐसा है तो तब फिर हम पहल करेंगे। कौन जाके हमको ढूंढ रहा था कि कितने लोग गए भाई? गुनाह का बैठा तो किसने पहल की थी? खुदा बाप यीशु मसीह खुद जमीन पर उतरा और उसने ढूंढा। आज कौन पहल करेगा माफ करने के लिए? ये एक छोटा सा आर्टिकल फेसबुक पर लिखा है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप वहां पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। कौन पहल करेगा? क्या कैथोलिक जो बड़ा भाई है, या प्रोटेस्टेंट छोटा भाई है, या कोई करा सकता है? कोई भी कर नहीं भाई, मुआफ कर ताकि हम एक हो जाएं। तुम सब एक हो जिस तरह मैं और बाप एक है, तुम एक हो जिस तरह मैं और बाप एक है, तुम एक हो जिस तरह मैं और बाप एक है, तुम एक हो। यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 चैप्टर वर्सेस 10 to 26. प्लीज रीड, चेक योर बाइबल, व्हाट द बाइबल स्पीक्स। मैं यहां पर किसी मिशन की बुनियादी नहीं करता जैसा। जब दूसरी मोहर खुली है तो उसको भी पढ़ते हैं किताब मुकद्दस में से। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि तेरे को घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, और उसके सवार को यह क्या दिया गया कि जमीन पर से सूरा उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। लाल घोड़ा है, रेड हॉर्स है, और मैं इसको बिबली करके देखता हूं कि ये यीशु मसीह का खून है। यीशु मसीह का खून और रूह कुदस के वसीले से हमें बरकत देता है, और उसके वसीले से फिरदौस के दरवाजे खुले जैसे। दूसरा कलमा क्या है? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि इब्ने आदम फिरदौस का भी मालिक है। प्रेज द लॉर्ड। इब्ने आदम इसीलिए तो उसने कहा था कि तू आज ही होगा। उसने नहीं कहा कि मैं अपने रोजा पूछा कि लाने के नहीं। नो, ये रॉन्ग टीचिंग है जिसे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। रूह कुदस का कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। खुदा रूह है, खुदा रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है, तो बाकी के कौन टुकड़े कर सकता है? ना वो कभी जुदा हुए और ना होंगे। तो कल आज बाक़यामत तक यकसा है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए, जोर से बोला करें। आप कलाम को पढ़ने वाले हैं। यीशु मसीह कल आज बाक़यामत तक यकसा है। तो जब कल भी वो था और आज भी वो है और आइंदा भी वही रहेगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और तीसरा कलमा क्या है बताइए? तीसरी मौत होने वाली है जी। देख है औरत, तेरा बेटा ये है, और उस शागिर्द से कहा कि तेरी मन ये है। असल कौन सी औरत की बात होती है? वहां पर की अपनी बहन भी थी, मुकस्सा मरियम की सगी बहन, मरियम क्लोपास की बीवी। वो भी बात कर रही थी। बेहतर तो होता है कि वो अपनी बहन को जाती ताकि दोनों बहन आपस में पैसा मांगती रहती, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। एक शागिर्द जो उसको प्यार करता था, और औरत को बाइबल मुकद्दस में कलीसिया कहा गया है। इसके लिए आप गलतियों का खात्मा उसका 4था बाब पढ़िए। उसमें लिखा हो कि आप में वाला की मां आजाद है और न्याय में। आप में वाला की मां हालेलुया। वो यरूशलेम
उस कलीसिया की फिक्र किसने करनी है? हाँ उस शागिर्द ने, हाँ उस शागिर्द ने। क्या नाम लिखना मुश्किल था? 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं, 12 के नाम लिखे हुए हैं। एक रसूल कहता है, यीशु मसीह से कहा यूहन्ना 3:14 बाब में, बड़ा दिलेर था, दिलेरी से कहने लगा कि जब उन्होंने फरमाया कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं चाहता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। तो एक शागिर्द फिलिप्पुस दिलेरी पकड़ी, उसने कहा तेरा बाप कौन है? तेरा बाप कौन है? हमें बाप को दिखा। ये मेरी और आपकी बाइबल में लिखा है, और तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर लिखा हुआ है। तीनों कुतुब मुकद्दसा से मुराद मेरी है कैथोलिक तर्जुमा, प्रोटेस्टेंट तर्जुमा, ऑर्थोडॉक्स तर्जुमा, और अगर कोई और भी तर्जुमा है तो उसमें यही लिखा है। हालेलुया। कलीसिया की जिम्मेदारी शागिर्दों के पास है। और क्या मैं और आप हकीकी शागिर्द है या नहीं? हकीकी शागिर्द के लिए 7 स्टेप्स लाजमी है। इसके लिए आप रसूलों के अमाल चैप्टर 2 उसकी 38 से लेकर बाब के आखिर तक मुताला कर लीजिए, ताकि आपको खुद पता चल जाए। पहले शागिर्द, फिर कलीसिया, फिर मसीही। ये है तरतीब कलाम पाक की। आगे बढ़ेंगे। चौथी मोहर लिखा है 7वीं आयत है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मौत है, और आग में अरवा उसके पीछे पीछे। मौत है और आग में अरवा। मुकाशा का नवाब और उसके अजीजों आखिरी आयात में लिखा हुआ है, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं, मौत और आग में अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मैं दाऊद की भी कुंजी रखता हूं, दाऊद की भी कुंजी उसके पास है। वो तो मुकद्दस पतरस को आसमान की बादशाही की वो कुंजियां दे रहे हैं कि मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां देता हूं। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोल देगा वो आसमान पर खुल जाएगा। मौत और आग में अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, और एक ईमानदार कैसे खोलेगा? अब पहले ग्रंथ उसका 15वां बाब और उसकी आखिरी आयत देखिए। 1 Corinthians chapter 15 verses 44, 46 to end of the chapter लिखा हुआ है। गौर से सुनिए, जरूर है ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म हालेलुया बका का जामा पहन चुकेगा, और ये मरने वाला जिस्म, वो कौन सा शख्स है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा? कोई है ऐसा इंसान जो उठाए गए हैं, जो जिन्होंने मौत का मजा नहीं चुका? उनमें से 2 तो आएंगे। मुकाशवा चैप्टर 13 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि वो 2 हुआ जिन्होंने पानियों को खून बना दिया और आसमान को बंद कर दिया। ये एलिया और मूसा है। वो वापस आएंगे, और अजीजों 3.5 साल तक उनकी लाशें मुकद्दस शहर यरूशलेम में, जहां पर तुम्हारा मसीहा मसलूब हुआ, वहां पर वो अजीजों को लाया जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर 3.5 साल के बाद आसमान से बादल आएगा, और उनके अंदर डाल के लाएगा, और वो कहेगा मेरे मुकद्दस लोगों ऊपर आ जाओ। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मौत और आग में वहां पर घर पकाना अब आपका काम है। मेरे यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, ये मैंने गुनाह किया था, इंसानों ने गुनाह किया था, और इसकी जिम्मेदारी भी हमारे पास है। उसने तो कर दिया सब कुछ सलीम पर, हमें कलाम दे दिया है। अब मुझे और आपको इस कलाम के अंदर से पढ़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, कलाम रिकॉर्ड भी हो रहा है फेसबुक पर। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है, खुदा का खातून उसको कलाम के अंदर से जवाब देगा। हालेलुया। 5वीं मोहर अजीजों 9वीं आयत है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे
उनकी रूही ने की जो खुदा बाप यीशु मसीह के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बाद मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली, क्या मालिक ऐ कद्दूस बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। पांचवी मोहर अजीजों, मसीहों पर तलवार है। ये मसीही जिंदगी कोई फूलों की नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देखते हैं, किस तरह से जुल्म पर जुल्म हो रहा है। बहुतों को नजायज मान दिया गया है, कितनी बेटियों को जबरदस्ती अगवा करके ले गए, कितना जुल्म, और कितनों पास्टरों को मारा गया, फादरों को मारा गया, बिशप साहबान को मारा गया है और हकीम मसीहों को मार दिया गया। और दुनिया के अंदर है शमा पूरा नहीं हुआ है, जान देने तक भी वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का दावा देता हूं। हालेलुया। अब अजीज छठी मोहर है, उस पर गौर करेंगे। और छठा कलमा क्या है जी अजीज? अभी भी याद आया था, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। पांचवें करने से पहले भी लिखा, जब सारा कुछ तमाम हुआ तो उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। घर में खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त रहे। वो तो हमारी प्यास बुझाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मत्ती उसका 5वां बाब है, ये शागिर्दों के लिए है। देखा उस भीड़ को देखकर वहां बच्चा जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तारीफ करने लगा, मुबारक 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 है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। सिर्फ उनकी प्यास है, उनकी भूख भी होनी चाहिए रास्तबाज बनने के लिए। इसके लिए तो पहला पत्रस का तीसरा भाव है और उसकी 26 में लिखा हुआ है कि वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि गुनाह के एतबार से मारकर राष्ट्रवादी के एतबार से जिए, गुनाह के एतबार से मारकर राष्ट्रवादी के एतबार और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। अब अजीजों, हम आगे बढ़ते हुए छठे करने पर गौर करेंगे। तमाम हुआ। प्यारी बेटी ने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे इजाजत दी थी, मैं आपकी इजाजत के बगैर नहीं बोल रहा हूं अजीजों। उन्होंने कहा था जो कुछ खुदावंद आपको एक कलमात के बारे में सिखा दे आप उसको रिवाइज कर दीजिए। मैंने किसी भाई ने जो कुछ भी कलाम सुना है, हालेलुया, सब सच्चा है, सब ठीक है, लेकिन जो कुछ बात उन्होंने मुझे दिया वो मैंने आपके सामने रखा। तमाम हुआ। अजीजों, वो कौन सी बात थी जिसके लिए वो कहते हैं कि तमाम हो गया? ये बात अदन में शुरू हुई थी, झगड़ा वहां से शुरू हुआ, पाकीज़गी में बनाया गया आदम और हवा को। मुझे हुक्म दिया गया कि तो हिलना नहीं का, क्योंकि वीडियो बन रही, बेटी ने कहा था कि थी रहना, वरना मैं खोल के कलाम सुनाता हूँ इधर उधर जा करके। तो अजीजों, वहां पर खुदा के जब आदम और हवा को बनाया गया, कैसा बनाया गया? कैसा बनाया गया था? आदम और हवा को खुदा बाप यीशु मसीह ने, जब वो कहता मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इतना वो बोलते हैं नेवर, वो कभी झूठ नहीं बोलते, उनका कलाम सच्चा है। हालेलुया। तो अजीजों, उन्होंने फरमाया, उन्होंने मर्द और औरत को अपनी सूरत और अपने शरीर पर बनाया। तीसरी आगे पर्सनैलिटी अबलीस, उसने उनको गुनाह की तरफ रखवा दे दिया, उन्होंने उसकी बात मान ली और सारी इंसानियत के अंदर ही गुनाह आ गया। कुर्बानी के सिलसिले शुरू हो गए। मत्ती सूरत के लिए उसके 7 बाब में लिखा है, मुझे कुर्बानी नहीं रहम पसंद है, मुझे कुर्बानी नहीं रहम पसंद है। बैलों, बकरों, बछड़ों, जो भी कुर्बानियां थी वो सब खत्म हो गई हैं।
और अब मुझे और आपको अजीजों उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर के उन सब बातों पर अमल करना जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उन सब बातों पर फिलिपियों के नाम पुस्तक क्या होगा, उसके पहले बार में लिखा है कि जो नेक काम मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है वो खुदावन के दिन तक वो पूरा हो जाए। उस नेक काम को जो मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है, हालेलुया, यानी वो रूह का काम जो तुम्हारे अंदर शुरू हुआ है उसको खुदावन के दिन, यानी अब तो आने वाला है अजीजों, अब वो शरीर पर नहीं दोबारा करने वाला, पैदा भी हो चुका, पैदा होकर के इंसान बनकर शरीर पर भी चढ़ गया, क्योंकि हवा को तो कोई शरीर पर नहीं अजीजों चला सकता था। लाशन था कि जो इंसान को बना सकता है बच्चे से, वो खुद भी इंसान बन सकता था। हालेलुया। अजीजों मुकद्दस दाऊद की आपने बहुत सी पेशगोइयां पढ़ी हैं, ज़बूरों में भी हैं, मुकद्दस मूसा ने भी उनके लिए बहुत लिखा है, और मुकद्दस जो अमिया के साहिब उन्होंने भी लिखा है। यसू मसीह ने जिंदा होकर उनसे कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरात, अमिया के साहिब और दाऊद के मज़ामीर में से सिखा दिया है, कि उन्होंने मेरे बारे में पेशगोइयां की थी, मेरे बारे में लिखा था, इसलिए वो जो नबूवतें थी उनका मेरी जिंदगी में पूरा होना लाज़िम है। मूसा की तौरात, अंबिया के सहाय और दाऊद के मज़ामीर के मानने में सुस्त और कामिल करा दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि ये दुख सह करके मुझे जवाब में दाखिल होना था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन सब बातों पर अमल करना जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को लिखते कहते हैं कि मैं अच्छी पुष्टि ला चुका हूं, मैंने ईमान को महफूज रखा है, और अब मैं उस सेहरे का मुंतज़िर हूं जो खुदावंद अपने सब ईमान रखने वालों के लिए, जो इसी तरह से उसमें कायम और दायम रहेंगे, उन सारी बातों को अपनी जिंदगी में रखेंगे, वो उनके लिए उन्होंने रखा है, और वो मुझे भी मिलेगा और उन ईमानदारों को मिलेगा। उन सब बातों पर, यानी ग्राम के साथ बातें हम माने ना, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आसमान की बादशाह में जाने से नहीं रोक सकती। आमीन, आमीन, हालेलुया। उन बातों को मुख्य तौर पर अजीजों बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक मैं मान रखता हूँ, या मुकाशवा से लेकर अजीजों पैदाइश तक, ये 66 किताबें हैं। कैथोलिक भाइयों के पास 72 किताबें हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स मसीही हैं उनमें से कुछ के पास 86 हैं, और कुछ के पास 85 भी हैं। मुख्तलिफ बाइबल्स हैं, लेकिन उनके अंदर कलाम एक ही है। कलाम में एक है अजीजों, हालेलुया। अगर मैं और आप अजीजों मिशनिज्म से बाहर निकल करके इसको पढ़ें खालिस से, और इन बातों को, और ये शुरू होती है तो 7 बातें नोट कर लीजिए। नंबर 1, हालेलुया, पहली कलीसिया की जो अजीजों जो बनी है वो आप देख सकते हैं, शुरू का नाम चैप्टर 2 उसकी 38 में लिखा है। जब मुकद्दस पतरस ने अजीजों, जैसे भाई पतरस हमारे बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने तलवार भी निकाली, किस तरह से रोक रहे, किस तरह से उसने 3 बार इनकार भी कर दिया, बल्कि लौंडी से भी डर किया, और यहाँ तक कि वो कब्र पर भी नहीं आया। जब औरतें होकर चलेगी तो दौड़ के फिर कब्र के जाता है, कहता उसके दरमाने रुमाल है, और ये वो रुमाल था अजीजों, ये वो रुमाल था, याद रखें। जब अजीजों फंसा थी, लास्ट सफर था, तो लिखा है कि यीशु मसीह ने वो रुमाल जो है वो बांधा अपने कमर पर, और वहां बांधने के बाद उसने शागिर्दों के पांव धोने शुरू किए। तो जब मुकद्दस पतरस से कॉल आया तो कहने लगा नहीं खुदा मेरे पैरों में हाथ ना, नहीं मेरे पैरों को मत छू। तो उन्होंने क्या कहा, आए पतरस, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शामिल नहीं है, तू मेरे साथ ही शामिल नहीं है। उसने कहा ये बात तू बाद में समझेगा, और कब उसको समझ आई, जब रूह कुदस मिला, फिर उसको समझा कि हाँ उस्ताद ने ये बात की थी। और कब्र में भी भागा, उसने जाकर देखा कि रुमाल पड़ा है तो दूसरी तरफ कफन गया उससे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और आखिरी करना चीजों, ऐ मेरे खुदा, नहीं आखिरी करना है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। आखिरी करना बच्चों देख लो सामने, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आशीषों
हमारे अंदर भी एक रूह है और उसको छोटे एस सोल से लिखा गया है। उसके भी सोल है, वो है जान, उसको कहते हैं। लिखा है यीशु ने अपनी जान दे दी, यानी वो रूह जो एक इंसान के अंदर है उसको भी सोल कहा गया है। और जो होली स्पिरिट है वो कैपिटल एस से उसको लिखा जाता है और वो भी रूह है। लेकिन वो जो पाक रूह है वो हमारे अंदर ही रहता है, पाक रूह अंदर रहता है। लेकिन जो हमारी जो रूह अपनी है, जो हमारे जिस्म के अंदर जाने जैसा चीजें कहते हैं, जब वो निकल जाती है तो फिर हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन पाक रूह जो है वो खत्म नहीं होता। इसलिए आप रोमन 8 बाब की तिलावत कर लीजिए और उसकी 10-12 आयत के अंदर लिखा है जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वही तुम्हारे फानी बदनों को भी जिंदा करेगा अगर वह तुम में बसा हुआ। उन्होंने कहा अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो कौन खड़ा करेगा? मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये नहीं कि मजदूर आकर हैकल चुकेंगे, नो। उन्होंने उनके सामने बैठ कर उसके सामने कहा इस हैकल को गिरा दो तो मैं इनसे तीसरे दिन खड़ा करूंगा। और जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वही तुम्हारे फानी बंधनों को भी जिंदा करेगा अगर वो तुम में बसा हुआ तो। क्योंकि जिंदा करने वाली रूह है, जिंदा करने वाला पाक रूह है। चीजों हमारे जितने कब्रों में होंगे वो खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जी उठेंगे जिन्होंने नेकी की है नेकी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है बदी की क़यामत के वास्ते। खुदा का पाक रूह हमें फजल दे कि हम सब उसके कलाम पर अमल करें। हालेलुया हालेलुया। जमात खड़ी हो जाए खुदा के हुजूर में और हम सब आपको दावत देते हैं चीजों। अगर आज तक आपने तौबा नहीं की, अगर आज तक उसके कलाम को आपने नहीं अपनाया तो आज खुदा का पाक रूह एक बार फिर आपको दावत देता है जी प्यारे भाई कैसे जी सामने आ जाए। हालेलुया। वो आपके लिए दुआ करेंगे। अगर कोई इकरार करना चाहता है कि हाँ वो उसको बार बार मसलूक ना करें, जो एक बार धो चुका और कुदस की उम्र बातों में शामिल हो चुका है चीजों, अगर वो ऊंट के टाले जाता है तो वो नामकबूल है, वो जमीन जल जाएगी। इसलिए खुदा का पाक रूह आपको बुलाता है, मौका है आपके लिए ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सकें। अगर आज तक हमने रूह कुदस की प्यास नहीं रखी तो उसे कहें खुदा मुझे अपना रूह पिला, मुझे पाक रूह दे, मैं पाक रूह का भूख और प्यासा हूं। जी करिए। अभी हम सब दुआ करेंगे और इस तरह भाई ये गीत पीछे गाएंगे और इस तरह हम सोचेंगे कि अगर अभी हमने अपनी ज़िंदगी खुदा को नहीं दी तो इस कफ़ारे को जो कि खुदा ने यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों के लिए हमारे गुनाहों के लिए, तो उसको कफ़ारे को हम देखते हुए अगर आज हम अपनी ज़िंदगी खुदा को देना चाहते हैं तो आप कोई भी हो आप आगे आ सकते हैं। हम सब मिलकर दुआ करेंगे और अगर कोई बीमार है, अगर कोई मुश्किल में है तो